आईसीएसआई के यूट्यूब चैनल पे जुड़े सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार है और वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन ट्राइबल टूरिज्म एंड नॉट जस्ट ट्राइबल टूरिज्म बट डेवलपिंग ट्राइबल टूरिज्म इन अ सस्टेनेबल मैनर. So the series that we have started in service industry on tourism, hospitality and aviation. Every day we take some or the other topic related with hospitality, tourism and aviation. So for today, we thought that let's talk about tourism, different forms of tourism, and a special variety of tourism on which our government is also focusing. So when we searched onto that, we found that this particular topic is very good and it has some important features to understand also. So जब हम बात करते हैं किसी भी सर्किट की, किसी तरह के टूरिज्म की, किसी पर्टिकुलर फॉर्म की, तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि whether the destinations कैसी हैं, पैकेजेस कैसे हैं, कैसे पहुंचा जा सकता है, किस तरह के टूरिस्ट जनरली आते हैं. बट यहाँ पे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या है और क्या है. बट हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, when you are dealing with this type of tourism, you have to be really responsible. As a tourist, you have to be practicing sustainable tourism while being at place which is good with tribal population and habitat. So इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं और पहली स्लाइड पे ही ना रुक के आगे चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं ट्राइबल टूरिज्म क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसके अंडर इंडिया में क्या क्या देखने लायक है और हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किस तरीके से डेवलप करनी चाहिए as far as tribal tourism is concerned. So to begin with, ICSI welcomes a few, and as we always say that we believe in Vasudhaiv Kutumbakam. हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, हम सब साथ, physically नहीं तो mentally, emotionally, and with our thoughts, with our work, and with our focus and ambition towards welfare of the community, of the society, wherever we are living. So ICSI is a link between India and over 32 million Indian diaspora abroad, and we are strategist, consultant, and staffing expert. And when we talk about service industry, so it has many sections. So we are covering them with a special focus on education and skills development. Okay, so when I'm talking about tribal tourism, let me clear this for every one of you so that it is quite visible to everyone. Yeah, right. So first of all, let us understand before coming on to tribal tourism. Now, the population within India for tribes are roughly, अगर मैं सिर्फ बात करूं कोई नंबर देने की बजाय सिर्फ एक परसेंटेज में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 8.6% जो है वो इंडिया में ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, which is roughly approximately 11.5 crores as given by Ministry of Tribal Affairs in the recent years, and out of which 50% they are still living in forest and very environment which is very close to nature and other things. And also it is very important that these skills tribe should be conserved, preserved, at the same time empowered in a very beautiful manner. When I'm saying beautiful manner, that means that their ethnicity should be preserved, should be conserved, and at the same time the uniqueness of these tribes, the culture of these tribes, the handloom, handicraft, these should be really elevated.
So on the right side, you are seeing some statistics wherein 705 scheduled tribes and very privileged variety of tribes. There are 75 in India. So these are few statistics to begin with. Now coming on to the topic, that is tribal tourism. So when we say tourism, we know what is tourism. When we are going to some place, हम कहीं जा रहे हैं, और especially जब वो जगह tribal population से कंजर्व प्रिजर्व है और ट्राइबल हैबिटेट्स के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां का जो टूरिज्म है, ऐसी जगहों का विजिट जहाँ पे हमें ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी कल्चर, उनकी डिफरेंट ऑथेंटिसिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हेरिटेज, एथनिसिटी इन आर्ट, ये सब देखने को मिलती है, तो इट बिकम्स ट्राइबल टूरिज्म. So now, what is the significance of tribal tourism? Tribal tourism obviously आपको एक variety देता है to understand the indigenous population, indigenous culture of your country. And at the same time, you can, as a responsible tourism, when you are promoting tourism, obviously tourism क्यों promote किया जाता है किसी भी जगह के लिए, तो it gives socio-economic benefit. At the same time, it also gives environmental benefit to that place. So if it is coming for tribes, अगर ये tribes के लिए ये socio-economic benefit आ रहा है और environmental benefit लेके आ रहा है tourism, as far as कि उनकी ethnicity, उनका culture preserve है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, so that becomes very important for the tribes also, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको economically, socially empower कर रहे हैं. But यहाँ पे बात आ जाती है, जो हमारा आज का टॉपिक है, कि जो भी हमने करना है, ये सिर्फ टूरिस्ट के एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है. We have to empower them, we have to develop them economically, we have to develop them socially and environment preservation at the same time, but in a sustainable manner. This we have to understand. Now, if we talk about कि tribal tourism का concept कब शुरू हुआ इंडिया में, कैसे आया, तो in 2014-15 budget, when Ministry of Tourism ने जो दिया, तो उन्होंने 2014 में अपने जो circuit tourism development करने का concept आया, तो वहाँ पे they have initiated the concept of tribal tourism. और सबसे पहला जो इंडिया में region ट्राइबल टूरिज्म के लिए डेवलप किया गया, और उसके लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, दैट इज छत्तीसगढ़. और ऐसा नहीं है कि 2014 और 15 के ईयर में अगर ये चीज निकाली गई और सजेस्ट की गई तो उसी साल हो गई. अगर हम आज भी देखेंगे तो ये जब जो कॉन्सेप्ट 2014 में ट्रैवल टूरिज्म का आया विद छत्तीसगढ़, ये बढ़ते बढ़ते वे इम्प्लीमेंट एक्चुअल मैनर में 2018 तक हुआ, जिसके लिए ग्रांट्स 2016 में मिली. सो इस तरीके की डेवलपमेंट हुई. पर जो पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट हमारे एग्जिस्टेंस में आया, इट गेट्स ओपन फॉर टूरिस्ट, दैट इज इन छत्तीसगढ़. सो अगर हम छत्तीसगढ़ ट्राइबल सर्किट की बात करें तो देयर आर लॉट मेनी एरियाज, जिसमें गनरेल, जशनपुर, चितपुर, कुंकरी, मेनपात and other areas also. And as we know that tribal tourism जो है, they basically what it is giving, छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर है, ट्राइबल विलेजेस का, प्लस उनका हैंडीक्राफ्ट्स, उनका हैंडलूम वर्क, और उनके छोटे छोटे जो एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स एज फार एज कल्चरल एथनिक रूट्स आर कंसर्न, तो उससे रिलेटेड जो उनके स्किल्स हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल तक, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट तक पहुंचे, और उसका फायदा विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो, फॉर द ट्राइब्स ऑल्सो एंड फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो, बट अगेन in a very systematic yet elegant, decent and sustainable manner. और इससे रिलेटेड क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, इसको इनिशिएट किया है, तो अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ ने अपना पहला द वेरी फर्स्ट कॉन्क्लेव
उन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज की टूरिज्म की, और उसी से रिलेटेड वो कॉन्क्लेव बेसिकली ये प्रमोट करने के लिए की कि दैट दे हैव लॉन्च नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल व्हिच दे हैव लॉन्च्ड, और उसके लिए उन्होंने एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की थी इन दिल्ली इन 2022. सो दिस इनिशिएटिव द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन. और जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2014 में ये कॉन्सेप्ट रखा गया, 2016 में इसके लिए बजट अप्रूव हुआ, और 2018 में पहला प्रोजेक्ट जो है, जितने हमने सर्किट्स देखे, वो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुआ. और उसके अलावा अगर हम अभी बात करें मिनिस्ट्री की, बिकॉज जब भी कोई चीज पॉलिसी एंड इस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो उससे ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स को भी फायदा होता है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट, गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रमोट दैट. और उसके साथ जब गवर्नमेंट है तो लोकल सपोर्ट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स की सपोर्ट भी मिलती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें आता है. तो उसके थ्रू काफी पैकेजेस हमने ट्राइबल टूरिज्म के देखने को हमें मिले. बट इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, सैंक्शन किए हैं, चार बेसिकली किए हैं. चार प्रोजेक्ट्स 3 स्टेट्स में, 2 नागालैंड में है, एक तेलंगाना में और एक छत्तीसगढ़ में. और जैसे आप देख रहे हैं ये अभी रिसेंट नहीं है, जैसे 2014 और 2015 में ये कॉन्सेप्ट आया था, तो उसी साल उन्होंने नागालैंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए किए, और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रही है. हर एक एरिया को सैंक्शन मिलते जा रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग. सो एक प्रॉपर सर्किट नागालैंड का भी है, जिसमें कोहिमा, वोखा और मोनचुंग. मून इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज इन नागालैंड. So again, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है. छत्तीसगढ़ ऑलरेडी वी नो कि it was the first state for tribal tourism development. तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं फॉर ट्राइबल टूरिज्म, जिसमें कि 3 मेन स्टेट शामिल है और प्रोजेक्ट्स 4. अब हम बात करते हैं इंडिया की. मैं बहुत जल्दी ग्लिम्सेस दूंगी कि अगर हम ट्राइबल टूरिज्म की बात करें, गवर्नमेंट ने तो ये 3 स्टेट्स में सैंक्शन किए हैं, पर क्या सिर्फ इन 3 स्टेट्स में ही ट्राइबल टूरिज्म है? क्या छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका नागालैंड ही ट्राइबल टूरिज्म के लिए है जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है? नो. ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में है, और ट्राइबल टूरिज्म का स्कोप अलग अलग स्टेट्स में है, जो कि आगे आने वाले सालों में और डेवलप किया जा सकता है. बट अगेन, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसका जो पॉपुलैरिटी है और उसका जो एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट है, वो तभी पॉजिटिव हो पाएगा अगर हम उसको सस्टेनेबल मैनर में करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मैनर में करेंगे. सो आइए देखते हैं एक बार कि भारत में और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइबल टूरिज्म की काफी संभावना है. तो उसमें एक आता है आपका उड़ीसा, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ हमने ऑलरेडी बात करी है. उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात is also having lot many potential to be developed for tribal tourism, जिसमें कि 29 main tribes है वहां पे. और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट हैज 8 states, 7 sisters plus Sikkim as a brother, जो कि पॉपुलरली कहा जाता है. तो all these 8 states have the ट्राइबल पॉपुलेशन, और मेनली जो इसमें है नागालैंड मेनली है, मिजोरम इज देयर, एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो हैव द स्कोप टू बी डेवलप्ड फॉर ट्राइबल टूरिज्म, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो हैव ट्राइबल पॉपुलेशन, बट देन they need to develop as far as tribal tourism scope is concerned. So entire northeast is one of the एरिया जो कि ट्राइबल टूरिज्म के लिए
ट्राइबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सोचा जा सकता है। उसके अलावा राजस्थान ऑल्सो हैव ट्राइबल पॉपुलेशन। उसके अलावा महाराष्ट्र, लद्दाख, अगेन इट डिपेंड्स कि हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें किस तरीके की पॉपुलेशन है, कहाँ पे ज्यादा है सबसे ज्यादा और कहाँ पे कम है। बट देन थोड़ा थोड़ा ट्राइबल सर्किट्स is there, and South India also, West Bengal, Andaman and Nicobar, and Himachal Pradesh. So what is important for tribal tourism? Actually, the main thing is when we say sustainable development of tribal tourism, it is very important to have right mindset for tribal tourism. And इसके अलावा हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इज नॉट इन द लिस्ट जो मैंने अभी आपको स्टेट्स दिखाई, बट पिछले साल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्राइबल टूरिज्म लॉन्च किया है और वहां की एक ट्राइब है थारू ट्राइब विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल, और इसको लेकर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ट्राइबल टूरिज्म का लॉन्च किया है इन 2022। नाउ देख लेते हैं कि जब इतना सारा स्कोप है और छत्तीसगढ़ के साथ डेवलपमेंट भी हुई है और बाकी 3 राज्यों को भी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, सो व्हाट ऑल अचीवमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कैन बी एट्रीब्यूट टू द डिफरेंट स्कीम्स, द 3 मेन स्कीम्स जो उन्होंने ट्राइबल के लिए लेके आए हैं। तो नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, मैक्स 50% ऑफ द ट्राइबल्स दे इनहिबिट इन द फॉरेस्ट एरिया, सो 100 ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए they will give minimum support price so that उनको economical benefit मिल सके। Then value addition, branding, processing through the प्रधानमंत्री जनजातीय विकास स्कीम। तो this is वन धन, जैसे जन धन स्कीम है ऐसे ही फॉर ट्राइबल्स दोज हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया में रहे वहां के लिए वन धन स्कीम। और तीसरी जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द ट्राइब्स, द ट्राइबल inhabitant persons. So ये schemes and these schemes have drastically transformed the tribal marketing system, providing fair prices and significant increase the income of tribal community. This is done by Ministry of Tribal Affairs. Again, with this, they have also thought of sustainable practices by establishing numerous value addition and processing centers across the country. Tribals were empowered to become entrepreneurs, resulting in revolutionized economic and social landscape. Now, this is what empowerment we are talking about. जब हम किसी एथनिक ट्राइब को, जब हम किसी ट्राइबल पॉपुलेशन को या किसी भी ट्राइबल पर्सन को देखते हैं जो कि आज भी, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो जो है फॉरेस्ट में रहती हैं, उनका बहुत ही इंडिजीनियस कल्चर है एंड दे आर वेरी आइसोलेटेड इनटू देयर ओन कल्चर एंड एथनिक बिलीव्स। ऐसा नहीं है, कई एरिया में जैसे हमने बताया many states they have the tribal population जो कि काफी डेवलप हो चुके हैं as far as their practices and habits and their education and development। जो नहीं हुई है गवर्नमेंट उनको भी और एम्पावर करना चाहती है, और जो एम्पावर्ड हैं, जो डेवलप हुई हैं, उनको और एम्पावर करना चाहते हैं। सो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सो वो व्यक्ति भी जो बहुत ही दूर दराज और विलेज एरियाज में या फिर फॉरेस्ट एरियाज में रह रही है ट्राइबल पॉपुलेशन, दे शुड ऑल्सो मच एम्पावर्ड एज जितना कि किया जा सकता है, जितना वो एक्सेप्ट कर सकती हैं हैप्पीली। तो उसमें चाहे वो उनके हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के द्वारा हो या उनको कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स देके जिससे वो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स में आ सके, या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके उनके हेल्थ केयर का ध्यान रख के। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बिल्कुल लो लेवल पे है उसको मिडिल लेवल पे कैसे लाया जा सके, उसको थोड़ा और एम्पावर कैसे किया जा सके नेक्स्ट स्टेप पे, और जो थोड़ा जो एम्पावर्ड है उसको और एम्पावर कैसे किया जा सके। दीज आर द सर्टेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी
लुक आफ्टर कर रहे हैं, और सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स they are also looking. So sustainable practices and as far as social, culture, economic and environment is concerned. And again, when we say sustainable practices, to provide them value chain. So this is what I was trying to tell you. Give them empowerment so that they can come in the value chain, and they can empower themselves as the industrialist or entrepreneur. There is also one organization, Indian Institute of Biosciences Research and Development, and they have a Center of Excellence in Sustainable Tribal Development. So उन्होंने क्या किया हुआ है, for holistic sustainable tribal development, the socio-economical system and intervene to enhance the competency of community and build the social, natural, financial capital to pursue livelihood, food security and well-being, so that उनको improve basically उनका HID Human Development Index improve किया जा सके. तो मतलब जितनी भी organizations जुड़ी हुई हैं for tribal development, they are basically focusing कि उनका living standard हम किस तरह से improve कर सकते हैं और उनको value chain में कैसे अच्छे से अच्छी facility दे सकते हैं. तो उसमें Center for Excellence in Sustainable Tribal Development by IBRAD they are also working. और उसमें जो उन्होंने मेन किया है तो एजुकेशन की फॉर्म में और उनको अच्छा लाइवलीहुड देकर और उनको जो उनके छोटे बेसिक जो प्रोडक्ट्स है, बिकॉज जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो उसमें उनको और एम्पावर करके उनको ऑर्गेनिक वे बता के, सो बेसिकली हमने उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है. नाउ जब इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, सब कुछ किया है, तो ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो बात आती है हम लोगों की. वी एज अ टूरिस्ट आर वी रियली केयर फॉर ट्राइबल टूरिज्म, फॉर ट्राइबल वेलफेयर, for tribal upliftment? अगर नहीं तो हमें सोचना है कि फिर हम ट्राइबल टूरिज्म प्रैक्टिस ना करें. I'm saying it right, और आपने सही सुना कि अगर हम ट्राइबल वेलफेयर की तरफ, ट्राइबल गुडविल की तरफ, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट की तरफ अगर हम इग्नोरेंट हैं या हम उसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते या हमें कोई परवाह नहीं है और सिर्फ हम अगर जाना चाहते हैं तो बिकॉज हमें नया कल्चर देखना है, हमें सीनिक ब्यूटी देखनी है, उनकी एथनिसिटी देखनी है, ऑब्जर्व करना है और नेचर को एंजॉय करना है और वापस आ जाना है. अगर इन चीजों के लिए हम जा रहे हैं और सिर्फ हमारा यही एक एम है, तो अच्छा है कि हम ट्राइबल टूरिज्म प्रैक्टिस ना करें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टूरिज्म डिमांड्स really responsible practices, sustainable practices from the side of tourist. और मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे इंसिडेंट लिखा नहीं है बिकॉज आई डोंट मतलब मैंने उस चीज को पढ़ा तो मुझे काफी इट हर्ट्स मी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. हम मतलब as a tourist how can we do that? The incident is of it has been quoted by different articles. जब आप अगर गूगल पे भी देखेंगे तो हमारा अंडमान एंड निकोबार में there is a, I will not name the tribe and other, so वहां पे जब ट्राइबल टूरिज्म की प्रैक्टिस के लिए लोग गए तो उन्होंने बहुत ही अनकल्चर्ड बिहेवियर शो किया. किसने? टूरिस्ट ने, नॉट द ट्राइब पीपल. दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी हम्बल एंड दे आर वेरी डिसेंट ग्राउंड टू अर्थ पीपल. जब तक हम किसी भी जगह को जानते नहीं है, हमें लगता है कि जितना हमें पता है और जितनी हमारी सिविलाइजेशन है और जितनी हमारी सोसाइटी है वही सबसे अच्छी है. पर जब हम बाहर निकलते हैं, जब दुनिया को जानना शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं हमसे भी पोलाइट, हमसे भी हम्बल और हमसे भी डिसेंट सिविलाइजेशंस कितनी है. तो मैं जिसका आपको बात कर रही हूँ, जो इंसिडेंट्स कोटेड किया गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन उठा है कि ट्राइबल टूरिज्म को रखना भी चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि नहीं.
सो वहां पे उनके साथ बहुत ही अनकल्चर्ड बिहेव किया गया और सम वेरी ऑब्जेक्शनेबल फोटोज क्लिक की गई और उनको काफी ऐसी मतलब प्रैक्टिसेस दी गई जो उनकी कल्चर को रुइन करती हैं, उन्हें खराब करती हैं, कहीं ना कहीं उनके कल्चरल वैल्यूज को और उनके आगे फ्यूचर जनरेशंस को खराब करने के लिए काफी हैं। तो उसके बाद वहां पे वो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इस फोटो में सामने, ये बोर्ड स्पेशली वहां पे लगाया गया फॉर द टूरिस्ट और उनको डूज एंड डोंट्स बताए गए इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो एज अ टूरिस्ट हमें इस चीज का दुख होना चाहिए कि हम अपने एंजॉयमेंट के लिए तो जा रहे हैं, बट कम से कम आप अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, पर इतनी सेंसिबिलिटी तो रखिए कि इस जगह पे जा रहे हैं आप उसकी कल्चरल वैल्यू, उनकी बिलीफ सिस्टम का रिस्पेक्ट करें, एटलीस्ट किसी को हर्ट ना करें। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि ये क्वेश्चन इरेज होता है, सॉरी इरेज क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट कैन बी डन टू मेक ट्राइबल टूरिज्म एथिकल एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस ट्राइब्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो सिंपल वन वर्ड वहां पे उनको एक्सप्लॉयटेशन से किस तरह से रोका जाए, ये एक इंसिडेंस है, आगे और हो सकता है, तो इसी चीज को ना हो। We need to understand this thing as a tourist, we need to understand this thing as a service provider, because कहीं ना कहीं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्हें पहले ही ट्रैवलर्स को समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप इस बिलीफ सिस्टम में नहीं हो और आप सिर्फ टूरिज्म अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो प्लीज आप इस पर्टिकुलर जो आपका कॉन्सेप्ट है ट्रैवल टूरिज्म का, उसको फॉलो ही ना करें। बट करें तो रिस्पॉन्सिबल बने और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, टूरिस्ट भी, सर्विस प्रोवाइडर्स भी, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी प्रॉपर ध्यान रखें इस चीज का। और उसमें फिर एक एग्जाम्पल भी वहां दिया गया कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कई जगहों पे देयर इज अ स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सो दैट इस तरीके के टूरिज्म को जब हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे ये चीजें हमें सही लगती हैं, बिकॉज ऐसी चीजें कहीं ना कहीं क्वालिटी टूरिस्ट को ज्यादा बढ़ावा देती है देन द क्वांटिटी टूरिस्ट। तो उसमें उन्होंने हॉर्नबिल का एग्जांपल दिया। और ऐसे नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऐसे हमने एक बार बात की थी अपने प्रेजेंटेशन में, अपने वीडियो में, अबाउट द जीरो फेस्टिवल ऑल्सो। सो सच काइंड ऑफ फेस्टिवल आपको लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के नजदीक भी लाते हैं, ट्राइबल टूरिज्म को भी परस्यू करने में हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी सेंसिटिविटी कितनी है एज अ पर्सन टुवर्ड्स अनदर पर्सन वो भी पता चलती है। तो सेंसिटिव बनिए, जैसे आप अपने लिए बिहेव चाहते हैं ना, जितना अच्छा आप अपने साथ चाहते हैं उतना ही सबके साथ कीजिए। और ये सिर्फ ट्राइब्स के लिए ही क्यों हो, मैं तो कहती हूँ कि आप एज अ पर्सन कहीं पे भी जाते हो, कोई भी टूरिज्म आप परस्यू कर रहे हैं, इफ यू आर अ पर्सन एंड यू आर मीटिंग सम अदर पर्सन, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं जो कि लोकलाइट है, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, कहीं का भी, तो उसको उतनी इज्जत दीजिए जितनी इज्जत आप अपने लिए चाहते हैं, उसकी उतनी ही केयर कीजिए जितनी केयर आप अपने लिए चाहते हैं, और उसकी उतनी रिस्पेक्ट कीजिए जितनी आप रिस्पेक्ट अपने लिए चाहते हैं। तो अगर आप इस तरीके का करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेन रिस्पेक्ट इन रिटर्न। और इसी तरह से जैसे अभी हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही दमन एंड दीव में, महाराष्ट्र, उड़ीसा में और दूसरे एथिकल टूरिज्म फेस्टिवल्स काफी पॉपुलर हुए विद इन द ethnic tribes and tribal forms. So this is my message through my presentation for today, that जब हम ट्राइबल टूरिज्म को समझ रहे हैं तो क्यों हमने वो वर्ड सस्टेनेबल बीच में लाया, क्योंकि ट्राइबल टूरिज्म को सिर्फ टूरिज्म की तरह प्रमोट कर देना या परस्यू कर लेना काफी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके सोशल, उनके इकोनॉमिकल और उनके एथिकल और उनका अगर हम कहें तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की तरफ ध्यान दें, जैसे कि गवर्नमेंट कर रही हैं। अगर हम ये कहें वो तो गवर्नमेंट है, वो कर सकती हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। हमारे लेवल पे हम जितना कर सकते हैं एज अ पर्सन, एज अ टूरिस्ट हम करें,
और उनके लेवल पे जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड, बट एज एन इंडिविजुअल हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो जरूर करें, ताकि इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टूरिज्म को भी उतनी ही पॉपुलैरिटी मिले जितनी और किसी पर्टिकुलर फॉर्म को मिले, बट उसके साथ साथ हम उनमें क्वालिटी लेके आए एंड सम वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सके उन सबकी जिंदगी में। तभी हम उन्हें कहीं ना कहीं ये बता पाएंगे कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो प्यारी सी धरती है, वो वाकई में रहने के, जीने के और कुछ सीखने के लायक है। नहीं तो उनको हमेशा यही लगेगा कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जितना हमें पता है, दैट इज वेरी गुड, डोंट indulge with the outer community because we don't know कब हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचे। तो ऐसा फीलिंग आप कभी ना आने दीजिए when you are pursuing any form of tourism, और अगर आप टूरिज्म नहीं भी कर रहे हैं फिर भी। So इस मैसेज के साथ ये मेरा आज का सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल टूरिज्म था। अब मैं आपसे हमेशा की तरह यही बात करूंगी जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. So do remember that and do give us your valuable suggestions and feedback on the given email ID and WhatsApp number. Along with that, we have completed 2073 webinars till date. And all these webinars are available on our YouTube channel @ICSI India Live. So आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारे webinars, हमारे अलग अलग टॉपिक्स के से जुड़ी हुई वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी के साथ साथ हम 22nd एनुअल इंटरनेशनल कन्वेंशन फीस्ट की फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स की करने जा रहे हैं 5th and 6th अक्टूबर को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और हम चाहेंगे कि जो भी ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, बिकॉज ये सिर्फ कन्वेंशन ही नहीं है फॉर एजुकेटर्स, ये B2B मीटिंग भी है ट्रैवल ट्रेड के लिए। तो जो इस फील्ड से जुड़े हैं, चाहे आप एजुकेटर्स हों, स्किल प्रोवाइडर्स हों, रिसर्चर्स हों, और corporates home from travel and tourism and hospitality and aviation background, you are more than welcome to join this particular convention, international convention, और ये हो रही है भुवनेश्वर, उड़ीसा में in Sandy Towers. This is the convention organizing committee, because and this includes everyone from India and outside India as well. और इसी के साथ साथ इसमें we are also holding paper presentations on the second day, और उसके लिए seeing the proximity of time, so बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट ना करके कुछ चुनिंदा पेपर प्रेजेंट्स हम उस दिन वहाँ पे कर सकते हैं। So we thought of 12 paper presentations will be there, और उन 12 को चुनने के लिए आप मोस्ट वेलकम है। वी आर स्टार्टिंग वन सीरीज फ्रॉम 15th to 27th September, 15th August to 27th September at 8 PM, and this will be live on YouTube also. Like जैसे आज मैं अपना ये एपिसोड लेके आपके सामने आई हूँ, this you are watching it live on YouTube. Same ways आप उन्हें सुन पाएंगे, अपना पेपर प्रेजेंट कर पाएंगे, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा जो 12 पेपर प्रेजेंटर्स हैं वो फिर हमारे साथ उस दिन जुड़ पाएंगे इन द कन्वेंशन ऑन 6th of October. So अगर आप ये जूम सेशन में आकर अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं इन बिटवीन 15th August to 27th एनी डे, सो आपके सामने यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यू कैन राइट टू अस और यू कैन ईमेल अस और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, और टॉपिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए एंड यू कैन जॉइन अस। एंड विद दिस आई एम ऑन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक the very sensitive and very important message
hidden behind this, to actually value human, actually value the presence, the existence and the belief system of human beings. Because क्यों वैल्यू करना है वो, क्योंकि हम भी इंसान, तो इंसान ही इंसान की कदर नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसी मैसेज के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और इस बिलीफ सिस्टम के साथ और इस प्रॉमिस के साथ दैट वी विल बी जॉइनिंग टुमारो एट 8 PM विद सम न्यू टॉपिक।